I praise God what Johnny brother have shared. जो जॉनी भाई ने यहाँ पे बांटा उसके लिए मैं परमेश्वर को स्तुति करता हूँ। Sometimes we forget where we are standing with our prayer request. कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम प्रार्थना के निवेदन के साथ हम कहाँ खड़े हैं, Where we are standing, in front of whom we are standing, sometimes we forget. और किसके सामने हम खड़े हैं ये भी कई बार हम भूल जाते हैं। So I want to read a verse recently, help me to meditate. एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ जिसने मेरे मनन करने में सहायता किया है। And it is very common, John chapter 14 verse 2 and 3. यूहन्ना 14 अध्याय उसका दूसरा और तीसरा वचन। It is written like this: My Father's house has many rooms. If there were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। We heard that God is faithful, God is strong, but this God is going to come back to receive you and me. परमेश्वर सामर्थ्यशाली है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परंतु ये परमेश्वर जो है हमें वापस उनके साथ लेने के लिए वापस आने वाले हैं। And in a living translation it is written like this: और एक अनुवाद में इस प्रकार लिखा है, I am going to prepare them for your coming. और मैं उन्हें तैयार करने इसलिए जा रहा हूँ तो ताकि तुम यहाँ पे आओ। That means the God's love, how much is for me, it is showing that verse. Your coming, I am preparing for your coming. परमेश्वर का प्रेम कितना हमारे लिए है वो वचन दर्शाता है कि तुम्हारे आने के लिए मैं वो जगह तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूँ। And when I meditated on this one, God helped me to show me the God's love and how much wretched sinner I am. जब मैंने इस वचन पर मनन किया तो परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि परमेश्वर का प्रेम मेरे प्रति कितना है, जो कि मैं एक बदतर पापी हूँ। And in the Jewish tradition, where when they're getting married, what will happen is a man and woman will get decided to marry. और एक यहूदी रिवाज के अनुसार ऐसा होता है कि जब एक पुरुष और स्त्री जो विवाह में एक साथ जुड़ने जाते हैं, Then the parents will decide whom to marry and all those things. They will decide. But then the man will go away to build a home so that he can bring his wife home. और माता पिता जो है इस बात का निर्णय लेते हैं कि जो है किसका विवाह किसके साथ होगा, परंतु जो पुरुष है वो जाकर उसके दुल्हन को लाने के लिए एक घर तैयार करता है। And this construction of home can take months or years. It can be. ये जो घर बनाने की जो विधि है हो सकता है कि बहुत महीने लग जाए उसमें, या साल भी लग सकते हैं। The bride have to wait when my bridegroom will come back and pick me up. और उस दुल्हन को इंतजार करना पड़ता है कि मेरा दूल्हा कब वापस आएगा मुझे यहाँ से ले जाने। We all know that Jacob having worked for 7 years. हम सभी जानते हैं कि याकूब ने 7 वर्षों तक काम किए। And the bridegroom father sees that my son is ready and he having enough to take care of his wife. The father will declare, okay, fine, now we all will go to the bride and we will bring back the bride. और जब जो दूल्हा है उसका पिता देखता है कि मेरे बेटे ने बहू को लाने के लिए सब कुछ तैयार कर लिया है, वो एकदम सक्षम है, तब उसका पिता जो है ये ऐलान कर देता है कि अब हम जाएंगे और हमारी जो दुल्हन है उसे यहाँ वापस ले आएंगे। That is usually happen in the night or midnight. और ये लगभग रात को होता है या तो फिर आधी रात को होता है। That's why when you come back with the bride, there will not be any electricity, so they will put up the lamp and torch light. और जब दुल्हन को लाया जाता है तब वहाँ पे बिजली वगैरह नहीं होती है तो मशाले जला दिए जाते हैं। That's where in Matthew 25 we are reading of 10 virgins. इसीलिए मत्ती उसके 25वें अध्याय में हम 10 कुंवारियों के विषय में पढ़ते हैं। And it is clearly written, it is the 10 bridesmaid. It is not written bride, it is written as bridesmaid. और वहाँ पे जो है 10 कुंवारियाँ दुल्हन ने लिखी हैं, दुल्हन की दासियाँ होती वैसे लिखी हैं। Because they are the persons who, when bride is walking, they will light the whole street with their lamp. और क्योंकि वो जब दुल्हन चलती हैं तो यही दासियाँ होंगी, जब दुल्हन चलेगी तब ये मशाले जलाएंगी। So when I meditated on many things from engagement to marriage,
God help me to understand how much loving my God is. और जब मैंने मंगनी से लेके विवाह की तक की बातों के बारे में मनन किया तो परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई। I want to share that joy and loving God who I am believing, I want to share with you. जो प्रेमी परमेश्वर है जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, जिसने मुझे ये बातें दिखाई है, मैं आपको वो बांटना चाहता The हूँ। first stage in our marriage, we all know that choosing the bride. और एक विवाह का जो पहला कदम होता है, हम सभी जानते हैं, वो है एक दुल्हन को चुनना। In Ephesians 1, chapter 4 to 7, we read like this. एफिसियों पहला अध्याय 4 से लेके 7 में हम ऐसा पढ़ते हैं। For he chooses in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight in love. He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will, to the praise of his glorious grace which he was freely given to us, the one he loves. जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की स्मृति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यार में सेंत में दिया। And Jeremiah chapter 1 verse 5 read like this. यिर्मयाह पहला अध्याय उसका 5वां वचन ऐसे कहता है, Before I formed you in the womb, I knew you. गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे देखा। Again in Ephesians Psalms 33:12 says like this. भजन संगीता 33 उसका 12 ऐसे कहता है, Psalms 33 verse 12. Blessed is a nation whose God is the Lord, the people he has chosen as his own inheritance. भजन संगीता 33 उसका 12, क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। And again we read in Ephesians chapter 2. फिर से हम पढ़ते हैं इफिसियों उसके दूसरे अध्याय में 4 to 7 I want to read. 4 से लेकर 7 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। But God, who is rich in mercy because of his great love with which he loved us, even we were dead in trespasses, made us alive together with Christ, and raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Jesus Christ, that in ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us in Jesus Christ. Ephesians chapter 2 verse 4 to 7. एफिसियों दूसरा अध्याय 4 से लेकर 7 तक। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएं। And in Living Translation it is written like this. और जीवित अनुवाद में इस प्रकार लिखा गया है, When we spiritually dead and doomed by our sins, और जब हम आत्मिक रूप से पूरी तरह मर चुके थे, पूरी तरह गिर चुके थे, and God have shown the undeserved favor, और परमेश्वर ने हम जिस बात के लिए योग्य नहीं थे वो उपकार हमको दिखाया, that is how we have been saved. इस प्रकार हम उद्धार पाए हैं। The undeserved love for me, such a wretched sinner doomed in sin, he loves me and chosen me as his bride. मैं जो पाप में गिरा हुआ, बिल्कुल अयोग्य, उस प्रेम के बिल्कुल भी काबिल नहीं, उस मुझे परमेश्वर ने प्रेम किया, पर प्रेम दिखाया मुझ पर और मुझे उद्धार दिया। What was my condition? मेरा हाल कैसा था? Again, Ephesians chapter 2, 1 to 4 we will read. एफिसियों दूसरा अध्याय उसके 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। Once you were under God's curse, doomed forever for your sins. और उसमें तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। You went along with the crowd and were just like all others, full of sin, obeying Satan, the mighty prince of the power of the air, who is at work right now in the hearts of those who are against the Lord. और जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। All of us used to, just as they are our lives, expressing the evil within us,
doing every wicked thing that our passions, our evil thoughts might lead us into. इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। God chose us, me and you, from that wretched, bad behavior. God chooses. और जो बदतर एकदम गंदा स्वभाव था हमारा, उसमें से परमेश्वर ने हमें चुना। We all may be knowing this truth. हम सभी इस सत्य को जानते होंगे। That's why we have got the salvation. God opened the eyes to see this wretched sin in our nature. इसीलिए हमें उद्धार मिला है। परमेश्वर ने आप में हमारी आंखें खोली कि हम एक बदतर पापी है, इस बात को हम देख पाएं। But it is always good to remember those initial days so that we can see how much God loved us. हमेशा उन प्रारंभ के दिनों को याद करना बहुत ही अच्छा होगा, ताकि हम इस बात को एहसास कर पाएं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। But what God touched my heart is the word, I am a person not deserving His love. जो बात मेरे हृदय को छुआ है वो ये बात है कि मैं एक अयोग्य व्यक्ति हूँ, इस बात के बिल्कुल काबिल नहीं हूँ, फिर भी परमेश्वर ने मुझे प्रेम किया। If God can love me, such an undeserving person like me, how can how I have to be with others? यदि मैं जो अयोग्य हूँ, बिल्कुल भी परमेश्वर के प्रेम के योग्य नहीं हूँ, और परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है, तो मुझे दूसरों के साथ कैसा होना चाहिए? God, this verse promises that it can be for robbers, terrorists, or who are having bad behaviors, addicted to pornography. God is saying that for undeserving, I am there. I chosen you as a bride. और ये वचन जो है ये दिखाता है कि जो भी पापी हैं, जो व्यभिचार में पड़े हैं, जो घात करने वाले हैं, या तो फिर अश्लील चित्रों को देखते हैं, ऐसे अलग अलग भिन्न प्रकार के पाप में पड़े हैं, उनको देखकर प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे चुनने के लिए यहाँ पे हूँ। But God have taught me another lesson. परमेश्वर ने मुझे एक और पाठ यहाँ सिखाया। Sometimes in my life, I will decide such a person is not deserving love or my help because he or she is undeserving my help. कहीं बार मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि ये व्यक्ति, फलाना व्यक्ति जो है कोई प्रेम के जो है काबिल नहीं है, मेरी मदद के काबिल नहीं है, क्योंकि वो बहुत जो है पाप में पड़ा हुआ है, इस बात की बिल्कुल वो योग्य नहीं है। It can be a husband, it can be a wife, or an auto driver, or a security guard, or person cleaning the flat. I will think that, okay, he is an undeserving person to express or give my love to him. और हो सकता है कि वो पति हो, पत्नी हो, या तो फिर ऑटो चलाने वाला व्यक्ति हो, या तो फिर सिक्योरिटी गार्ड हो, उनको देखकर मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि ये व्यक्ति जो है मेरे प्रेम करने के बिल्कुल योग्य नहीं है। We are labeling certain people that they don't deserve. We always say like that. हम लोगों पर ये थप्पा लगा देते हैं कि वो बिल्कुल इस बात के योग्य नहीं है। I have said like that. मैंने ऐसे कहा है। But our heavenly Father is saying that you are undeserving my love, but I loved you. परंतु हमारा स्वर्गीय पिता हमसे कहता है कि वो तुम जो हो इस प्रेम के बिल्कुल योग्य नहीं हो, फिर भी मैंने तुमसे प्रेम किया। He is ready to extend his undeserved love. वो जो है अपने जो योग्य नहीं होने वाले लोगों के प्रति होने वाले प्यार को जो है वो देने के लिए तैयार होता है। That's how we have chosen to as a bride. इसीलिए हमें एक दुल्हन के समान चुना गया है। And I want to turn to another attention where in the engagement to marriage. और एक और ध्यान देने वाली बात है जो है मंगनी से लेकर विवाह तक की बात में। Because now the bride have been selected. अब दुल्हन जो है चुन ली गई है। In the Old Testament, the bridegroom had to pay a price for the bride. और पुराने नियम में ऐसा हुआ करता था कि जो दुल्हा जो है वो दुल्हन के लिए कुछ जुर्माना भरता था। That's why in Genesis 29, when we read about Jacob, he is working 7 years to get actually Rachel. और हम इसलिए देखते हैं कि याकूब जो है 7 सालों तक काम करता है ताकि उसे राहेल जो है पत्नी के रूप में मिले। And I said, okay, within 1 year actually there is a maximum limit of a person can marry the bride. But here Jacob have to work 7 years to get Rachel. परंतु कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि अरे 1 साल तक काम करके मिल जाएगी तो अच्छी बात है, परंतु यहाँ पे हम देखते हैं कि याकूब को 7 वर्षों तक काम करना पड़ा रेचल को पाने के लिए। Then I meditated, then I understood that how much Laban is very less wages he is giving to Jacob.
और हाँ, फिर मैंने देखा और मनन करके देखा कि जो लाबान है वो याकूब को बहुत ही कम जो है पैसा देता था उसके लिए। And we all know that he not getting Rachel. Initially he getting Leah, and he again have to work for 7 more years to take care of Rachel also. और फिर हम देखते हैं कि पहले 7 साल काम करने के बाद लाबान ने उसको राहेल नहीं दी, लेया दी थी, फिर बाद में उसे और 7 साल काम करना पड़ता है राहेल को पाने के लिए। Similarly, we are reading in 1 Samuel chapter 18, 20 to 28, where we are reading about Saul's daughter Michal is in love with David. और वही हम पढ़ते हैं पहला शमूएल की किताब में कि जो साउल की बेटी जो मिखाएल है वो जो है दाऊद से प्रेम करती है। And verse 23, David is saying that how can I marry a king's daughter? I'm a poor man. I don't have anything to pay for that bride. और भजन संगीता में दाऊद इस प्रकार कहता है कि मैं बहुत ही गरीब व्यक्ति हूँ, मैं राजा की बेटी से कैसे प्रेम कर सकता हूँ क्योंकि मुझे उसे देने के लिए मेरे पास कोई धन नहीं है। But Saul there giving a tougher stuff to kill 100 Philistines and bring the foreskin to me. और फिर हम देखते हैं वहाँ पे साउल जो है दाऊद को बहुत बड़ा एक काम दे देता है कि वो 100 फिलिस्तियों को मार के उनके चमड़े लेके आए, And David is bringing that one. और दाऊद वो लेके आता है। But my matter is this, that see, everywhere it is like that. The bridegroom have to pay a price, always paid a price to get a bride. कई बार ऐसा ही होता है कि जो दूल्हा है उसे कीमत चुकाकर दुल्हन को ले आना पड़ता So है। how we have been bought? हमें किस तरीके से खरीदा गया है? I want to read from 1 Peter मैं पढ़ना चाहता हूँ पहला पत्रस chapter 1, पहला अध्याय 18 to 20. 18 से लेके 20 तक। You were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect, he has chosen before the creation of the world, but was revealed in this last time of your sake. यहाँ पे लिखा गया क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से जाना गया था पर अब इस उन्नति युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। Here it is written, you were redeemed. यहाँ पे लिखा गया कि तुम्हारा छुटकारा हुआ है। That means in English it means he is buying you back from some clutches of this sin. और अंग्रेजी बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है कि पाप के बंधवत में से तुम्हें वहाँ से मोल लिया गया है। And for what reason he have been bought, redeemed? और किस चीज़ के लिए मोल लिया गया है? And we read 1 Peter chapter 1 verse 22. पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 22वां वचन हम पढ़ेंगे। Now we can have real love for everyone because your souls have been cleansed from selfishness and hatred when you trusted Christ to save you. So see to it that you really do love each other warmly with all your hearts. जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है तो मन तन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो क्योंकि तुमने नाशमा नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। For what reason he have been bought with a price? और कीमत दे के मोल लिया क्यों गया है उन्हें? So clean from selfishness and hatred. ताकि उसे जो है स्वार्थीपन से और जो नफरत से जो है उसे छुड़ाया जाए। So brothers and sisters, can you examine right now? Anybody is in your life you hate so much? भाइयों बहनों, क्या आप अपने आप को जांच के परख सकते हैं कि आपके जीवन में ऐसा कोई है जिससे आप नफरत करते हो? You have to imagine that God have bought you with a price to cleanse from this selfish attitude and hatred attitude. आपको इस बात को याद करना होगा कि परमेश्वर ने जो है अपना पवित्र बहुमूल्य लहू देकर आपको खरीदा है ताकि आपके ये स्वार्थी और जो नफरत स्वभाव है उसमें से आपको छुटकारा मिला जाए। The hatred can be with your college or school teacher or school friends or college friends also. ये नफरत जो है वो आपके स्कूल के कॉलेज के जो अध्यापक है या वहाँ के छात्र उनसे हो सकती है। Sometimes it can be against your parents or in your
your boss or in a working environment also. ये नफरत हो सकता है उनके प्रति हो जो आपके माता पिता हो, या तो फिर जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ के जो बॉस है उनके प्रति भी ये हो सकता है। It can be the harassing relatives also, can be harassing neighbors also. और जो आपके सताने वाले पड़ोसी हो सकते हैं वो, या तो फिर जो आपके रिश्तेदार हैं जो आपको सताते हैं उनके प्रति हो सकता है। Sometimes this hatred can be the smarter person in your office or in school or college. या तो फिर ये नफरत उनके प्रति हो सकता है जो कि आपके कॉलेज में या तो फिर आपके दफ्तर में आपसे ज्यादा बुद्धिमान हो। Maybe we will not express externally, but we will have internally having some hatred to that smart person. पर हो सकता है कि हम इस बात को बाहरी तौर पर तो नहीं दिखाएं, परंतु अंदरूनी रूप से हम वो जो हमसे बुद्धिमान है उसके प्रति ये नफरत रखें। To a security guard or a canteen boy or canteen owner also, we can have that hatred attitude. एक सिक्योरिटी गार्ड के प्रति या तो फिर कैंटीन के ओनर या तो वहाँ पे जो काम करने वाले उसके प्रति भी ये जो नफरत का स्वभाव हमारे अंदर हो सकता है। Why I am mentioning about security and canteen owner? Because I was gone through that hatred attitude to these fellows. मैंने ये इस बात की जिक्र क्यों किया सिक्योरिटी गार्ड और कैंटीन के ओनर के विषय में, क्योंकि मैंने ऐसे किया है। Such a hatred attitude to those impolite behavior of those persons. उस व्यक्तियों के प्रति जो है ऐसे नफरत भरा एक स्वभाव, एक बिल्कुल भी नम्र ना रहने वाला एक स्वभाव। God help me to cleanse that hatred attitude. परमेश्वर ने मेरी सहायता की कि वो जो नफरत करने वाला स्वभाव है उसमें से मैं शुद्ध हो पाऊं। Because in Acts 20 verse 28 says like this. प्रेरितों के काम 20 उसके 28 में ऐसा कहा गया है। Even though that is an instruction given to the elders of the church, भले ही ये जो उपदेश है कलीसिया के अगुवों को दिए गए हैं, but it end like this. परंतु उसका अंत ऐसा होता The है। church of God which he bought with his own blood. और जो परमेश्वर की कलीसिया जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। And in Revelation chapter 5 verse 9 it says like this. और प्रकाशित वाक्य 5 उसके 9 में ऐसा कहा गया है। Revelation chapter 5 verse 9. प्रकाशित वाक्य 5 उसका 9वां वचन। They were singing him a new song with these words, "You are worthy to take the scroll and break its seals and open it, for you were slain and your blood was bought people from every nation as gifts for God." और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। I want to read one more verse, Mark chapter 10 verse 45. मैं एक और वचन पढ़ना चाहता हूँ, मरकुस 10 उसका 45। It is written like that, "For even I, the Messiah, am not here to be served, but to help others and give my life as a ransom for many." क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की चुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। It is English, it is written ransom for many. और जो अंग्रेजी शब्द है वहाँ पे लिखा गया है कि उनको छुड़ाने के लिए, मोल लिए जाने के लिए। And ransom, the meaning in the English, it's like this. और बहुतों को छुड़ाने के लिए उसका अर्थ इस प्रकार है। The price paid to free someone who has been captured illegally and held as a prisoner. जो गैर कानूनी रीति से जिसको पकड़ा गया हो, बंदूबत में रखा गया हो, उसको मोल लेकर वहाँ से आज़ाद करना। So how much he is loving us. He want to deliver everybody. It is get captured illegally and held as a prison by Satan, by his putting his sin attitude in us. परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है कि जो जिन लोगों को शैतान ने उसके जो गंदे पाप में जो स्वभाव है वो डालकर जो है गैर कानूनी रीति से उन्हें बंदूबत में रखा हो, उनको छुड़ाने के लिए वो कितना हमसे प्रेम करता है। I want to turn to Titus chapter 2 verse 14. तीतुस 2 उसका 14 जाएंगे। He died under God's judgment, Titus chapter 2 verse 14. तीतुस 2 उसका 14 वचन। He died under God's judgment against our sins so that he could rescue us from the constant falling into sin and make us his very own people with cleansed hearts and real enthusiasm for doing kind things for others. जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। And in Living Translation, I want to emphasize, he written like that, he could rescue us from
constant falling into sin. और लिविंग जो अनुवाद है वहाँ पे लिखा गया है कि जो हम लगातार पाप में गिरते जाते थे उसमें से हमें छुड़ाने आया है। Brothers and sisters, we may be going through these type of things, constantly falling into same sin again and again and again. भाइयों बहनों, ऐसा हो सकता है कि हम लगातार जो है एक ही पाप में बार बार गिरते जा रहे हों। But here it is say that God will rescue those people also. यहाँ पे कहा गया है कि हमारा परमेश्वर जो है ऐसे लोगों को भी उसमें से छुड़ाएगा। From when He chose us, उसने हमें कब चुना? before the foundation of this world. इस विश्व की नींव डालने से पहले ही। That's why maybe David is crying in Psalms chapter 8, 3 and 4. इसलिए दाऊद रो रहा है यहाँ पे भजन संहिता 8, 3 और 4 में। Psalms chapter 8, verse 3 and 4. भजन संहिता 8, 3 और 4। When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars when you have set in place, what is mankind that you are mindful of them, human beings that you care for them? जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। And Living Translation it is like, how can you bother with mere puny man? और मैं एक साधारण सा एक व्यक्ति हूँ, उसके लिए तो इतना फिक्र कैसे कर सकता है? How can you pay attention to me? मैं एक तुच्छ व्यक्ति, उस पर तू ध्यान कैसे लगा सकता है? So many times my daughter will do some things in her room. और कई बार मेरी बेटी जो है उसके कमरे में कुछ कार्यों को करती है। Sometimes color on it and paste it on the wall. कई बार जो है वहाँ पे चित्र बनाती है, कलर करके वहाँ पे चिपका देती है। Sometimes she put some coloring lights in her room also. कई बार उसके कमरे में जो है लाइट्स भी लगा देती She है। is so happy with that one. और उस बात को लेकर बहुत खुश भी रहती So है। no, recently when you're thinking about that, God can also do that. He created suns, moon and stars that is rotating all around. He can be happy with that, seeing this all the lightning stars and all those things. और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है परमेश्वर भी खुश हो जो कि चंद्रमा, तारागण और सूरज बनाए वो घूमते रहते, वो बात को देखकर भी खुश हो। But He have concerned about me. फिर भी उसके अंदर मेरे लिए फिक्र है। Because that's why He is ready to bought in the cross. इसलिए परमेश्वर ने उस क्रूस पर हमें मोल लिया। For that one, there is an engagement is there in the marriage ceremony. और एक विवाह के कार्य में जो है मंगनी भी होती है। Because he bought me with a price. क्योंकि उसने दाम देकर मुझे खरीदा है। What is my covenant? और मेरा वाचा क्या है? I want to turn our attention to Hebrews chapter 8 verse 10. इब्रानियों 8 उसका 10। Hebrews chapter 8 verse 10. इब्रानियों 8, 10। I will put my laws in their minds and write them on their hearts. I will be their God and they will be my people. फिर मैं कि जो वाचा मैं उनके 8:10. यस कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। So he is ready to call me his people. तो वो मुझे अपना जन कहने के लिए तैयार है। Same thing we will read in Hebrews chapter 10 verse 15 and 16 also. वही वचन हम पढ़ सकते हैं इब्रानियों 10 उसके 15 और 16वें वचन में भी। This is an agreement I will make with the people of Israel, though they broke their first agreement. I will write my laws into their minds so that they will always know my will, and I will put my laws in their hearts so that they will want to obey them. और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। And when you meditate on this marriage relationship with your Father in heaven, और जब इस विवाह की बात को जो आपके स्वर्ग में जो पिता है उनके साथ आप जोड़ते हैं, where I want to read one more verse, Hebrews chapter 13 verse 4 and 5. एक और वचन में पढ़ना चाहता हूँ इब्रानियों 13 उसका 4 और 5। Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all sexually immoral. Keep your lives free from love of money and be content with what you have, because God has said,
never will I leave you, never will I forsake you. विवाह सब बात में आदर के बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। If I believe or you believe that I am a bride for that my God, then we have to obey this command in the loving relationship with your Father. यदि हम इस बात को विश्वास करते हैं कि हम जो है प्रभु परमेश्वर के साथ जो है हमारा रिश्ता जो है तय हो चुका है, मैं उसकी दुल्हन हूँ, तो ये यहाँ पे जो वाचा दी गई है उसका हमें आज्ञा पालन करना है, ये करना है। But sometimes while hearing this one, maybe somebody will be disappointed, saying, how can I do this? और कई बार कुछ लोग ऐसे सुनकर जो है निराश हो जाएंगे और कहेंगे कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। And that's why Philippians 1:6 says like this. इसीलिए फिलिपियों 1:6 में कहा गया है, And I am sure that God who began the good work within you will keep right on helping you grow in His grace until His task within you is finally finished on that day when Jesus Christ returns. और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। Brothers and sisters, maybe you are thinking that, okay, enough, God cannot love me, such a wretched sinner. Maybe sometimes you will get disappointed. भाई बहनों, कहीं बार निराश होकर ऐसे कह सकते हैं कि मैं एक बदतर पापी हूँ, मुझे से पापी से प्रभु परमेश्वर जो है प्रेम कर ही नहीं सकते। Brothers and sisters, we read that fine, God is started that work in me to complete it until the day of Jesus Christ. यहाँ पे हमने भाई बहनों पढ़ा कि प्रभु परमेश्वर ने जो है हमारे मन में इस काम का आरंभ किया है कि वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करें। That's why Johnny brother said, do you have faith in the God that He can purify and restore my broken relation with my Father? इसलिए भाई जॉनी ने इस प्रकार कहा कि क्या आप ये विश्वास कर सकते हो कि जो परमेश्वर जो है आपके जो है टूटा हुआ रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है उसे परमेश्वर जो है फिर वापस कर सकते हैं, पुनः स्थापित कर सकते हैं। We all know that Jesus praying to a Father in Gethsemane. हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में परमेश्वर से प्रार्थना की। In 26, Matthew chapter 26, we read that, my Father, if it is possible, maybe this cup may be taken from me, yet not as I will, but as per your will. 26 26, 28 to 29. मत्ती 26:28 से लेकर 29 तक। क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया, मैं Matthew chapter 26 verse 39. मत्ती 26 उसका 39 वचन। फिर वह तोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और 39 sister. Yes, brother. Matthew Yes, chapter 26 yes, verse yes, 39 onwards. Yes. 39. मुंह के बल गिरा और हाँ, ये yes, प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। So we all know that we all heard that Jesus is praying for that 3 hours separation or whatever separation he is going to have his relationship with his Father. तो हम सभी इस प्रार्थना को जानते हैं कि आगे जाकर प्रभु यीशु मसीह का जो रिश्ता 3 घंटे के लिए जो परमेश्वर पिता से अलग होने वाला था उससे लिए कर रहे थे। But I was imagining a conversation happening with God and Jesus Christ. पर मैं इस प्रकार कल्पना कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह के और पिता के बीच में बातचीत इस प्रकार से हुई My होगी। son, Joseph, he is going to born in Kerala. He have to travel so many distances, so many places. If you don't bear this, he will die eternally in the earth and eternally in the heaven. और प्रभु ने यीशु से ऐसा कहा परमेश्वर ने कि क्या तुम जानते हो यूसुफ नाम का जो व्यक्ति है वो केरला में जन्म लेने वाला है और अलग अलग विभिन्न स्थानों पर वो जाने वाला है, रहने वाला है। यदि तुमने इस कटोरे को अभी नहीं लिया, यदि इसने नहीं अपनाया, तो वो अनंत काल के लिए इस पृथ्वी पर मर जाएगा, अनंत में खो जाएगा। Can you bear this short time of separation with me?
क्या ये कुछ समय के लिए जो अलगाव मुझ में और तुम्हारे बीच हो रहा है उसे क्या अपना सकते हो? When I meditate on this one, say I have gone to many medical issues in the last 1.5 years. और मैं पिछले 1.5 वर्षों से कुछ जो मेरे सेहत के लिए जो भी परेशानियों को मैं झेल रहा हूँ। Sometimes I have to go to 10-15 injections per week. ऐसा कई बार होता है कि एक हफ्ते में 15-20 तक इंजेक्शंस लगते हैं। And for taking the blood or taking for bone marrow and all those things, but I bear so that my disease get diagnosed properly. और वो खून निकाले जाते हैं और बोन मैरो निकाले जाते हैं, परंतु मैं ये सब कुछ सह लेता हूँ ताकि मेरे अंदर जो बीमारी है उसका पता लग पाए। So like this, I bear all those pain. Jesus is ready as a son so that I will get saved. और वैसे ही इन सारे बातों को प्रभु यीशु मसीह जो पुत्र थे उन्होंने भी सह लिया ताकि मैं पाप से छुड़ा लिया जाऊं। Why he shown the love towards us? और उसने हमारे प्रति इस प्रेम को क्यों दिखाया? I want to read Hosea chapter 2 verse 16. होशे 2 उसका 16 पढ़ना चाहता हूँ। Hosea chapter 2 verse 16. होशे 2 उसका 16। In that day declares the Lord, you will call me my husband, you will no longer call me my master. और यहोवा की ये वाणी है कि उस समय तो मुझे ईशी करेगी और फिर बाली ना कहेगी। In that coming day, Jesus is going to come back. Till now we are calling him a Father, Abba Father. Now we are going to see his love, and our love will be expressed like my bridegroom. और प्रभु यीशु मसीह को अब जो है पिता के रूप में पुकारते हैं। एक दिन जो है प्रभु वापस आएंगे, उस दिन एक दुल्हे की नाई परमेश्वर को हम देखेंगे। So then what he will do for us? और वो हमारे लिए क्या करेंगे? Verse 19 to 20. 19 से लेकर 20 तक। Hosea chapter 2 verse 19 and 20. होशे 2 उसका 19 से 20। I will bind you to me forever with chains of righteousness and justice and love and mercy. I will betroth you to me in faithfulness and love, and you will really know me, that as you never have before. और मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, और ये प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा, और ये सच्चाई के साथ की जाएगी, और तू यहोवा को जान लेगी। Are you loving this God? क्या तुम इस परमेश्वर से प्रेम करते हो? Such a loving God. जो एकदम प्रेमी परमेश्वर है। I am undeserved, dishonest, I am hatred, I am having all constant sins my life, but he is ready to love me. मैं जो हूँ बहुत ही अयोग्य हूँ, लगातार पाप में रहता हूँ, बिल्कुल भी जो है अच्छा नहीं, परंतु वो मुझसे प्रेम करने के लिए तैयार है। He is patient. वो बहुत ही धीरज धरता है। He is kind. वो बहुत ही करुणामय है। He does not envy. वो बिल्कुल भी दोष नहीं जो है जलन नहीं रखता। He does not boast. वो घमंड नहीं करता। He does not dishonor us. वो जो है निरादर नहीं करता। He will not keep a record of my wrongdoings. मेरे जो गलत कामों का कोई भी लेखा वो नहीं रखेगा। But he does not delight in evil. परंतु बुराई से खुश नहीं होता। He rejoices with the truth. वो सच्चाई से आनंद करता है। He always protects. वो हमेशा सुरक्षित रखता है। He is trustworthy. वो हमेशा विश्वास योग्य है। He always perseveres. और वो हमेशा जो है धीरज धरता I है। want to read the same thing. I read in another 1 Corinthians chapter 13 verse 4 and 7. पहला कुरिन्थियों 13:4-7। 1 Corinthians chapter 13 verse 4 and 7. पहला कुरिन्थियों 13:4 और 7। Love is very patient and kind, never jealous or envious, never boastful or proud, never haughty or selfish or rude. Love does not demand its own way. It is not irritable or touchy. It does not hold grudges and will hardly even notice when others do it wrong. It is never glad about injustice, but rejoices when our truth wins out. If you love someone, you will be loyal to him no matter what the cost.
प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति से नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। We know that God is love. We've said many times, we read in the word of God. परमेश्वर के वचन में हमने हमेशा ही पढ़ा है कि परमेश्वर प्रेम है। In removing love, if you put God, then you can imagine God is patient, God is kind, God does not envy, God does not boast, God is dishonor me, God will not seek His will. That's why we read, He will not anger, He will not keep any records of wrong. He always loves me, always protects me, always trusts me, always hopes in me, always preserves me. इसलिए हम देखते हैं कि जब परमेश्वर प्रेम करता है, इस प्रेम को छोड़कर हम देखें तो परमेश्वर धीरजवंत है, कृपालु है, डाह नहीं करता है, अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं है, और वो मेरी जो बुराइयां हैं उसको गिनते नहीं रहता, उसका लेख नहीं रखता है, परंतु हमेशा वो धीरजवंत है और धीरजवंत धरता है और आशा रखता है, वो मुझसे प्रेम करता है। This, my bridegroom is my God the Father, is having this quality. और मेरा जो दुल्हा है, मेरा पिता परमेश्वर है, उसका ये स्वभाव है, ये गुण है। I heard one illustration like this. मैंने एक जो दृष्टांत इस प्रकार When सुना, a man and woman decided to marry, जब एक पुरुष और स्त्री जो है विवाह करने का निर्णय ले लेते they हैं, will book a hall. वो एक हॉल का जो बंदोबस्त करेंगे They will start preparing for the marriage. और वो विवाह के लिए तैयारी करना शुरू कर When the देंगे। days goes by, they will buy the clothes, they will start printing the invitation card, and they will prepare everything for the marriage. और जैसे ही दिन नज़दीक आते जाते हैं तो वो अपने कपड़े खरीद लेते हैं और जो विवाह का जो आमंत्रण चिट्ठी है उसको तैयार करते हैं, उसको प्रिंटिंग करके रखते हैं। They will arrange the food for how many people are coming, and they will arrange the food also. और जितने लोग आने वाले हैं वहाँ पे उनके लिए खाना वगैरह भी तैयार करके रखते हैं। They will buy separate coat, suit, or whatever thing, dresses, shoes, everything get polished and get ready for that. और जो भी उनको कपड़े या पहनावे पहनने होते हैं उस दिन के लिए वो सारी बातों को अच्छे से तैयार करके पॉलिश करके रखते हैं। When the marriage day is nearing, then they will cut the hair and make it beautiful, so that now I will look nice to receive my bridegroom. और जैसा ही विवाह का दिन जो है नज़दीक होता जाता है तो अपने एक बाल वगैरह कटा लेते हैं और अपने चेहरे को चमकदार बनाते हैं ताकि जिस दिन मैं अपने दूल्हे को देखूं उस दिन मैं बहुत ही अच्छे से तैयार रहूं। We all know that this gap mein we will try to talk with each other, exchange many letters. In olden days letters, now the mobile. We try to understand each other so that the love will keep increasing till that marriage day. और हम देखते हैं कि इन दिनों के बीच में जो है एक दूसरे से हम बात करते रहते हैं, चिट्ठियाँ लिखते हैं। पुराने दिनों में अब तो मोबाइल है तो मोबाइल के द्वारा एक दूसरे से बात करते हैं और हम दोनों के जो एक दूसरे के प्रति प्रेम है वो ज़्यादा बढ़ता जाता है। Brothers and sisters, are we excited like to see our bridegroom in the heavens? भाइयों बहनों, क्या मिसी रीति से उत्साहित हैं हमारे जो स्वर्ग में जो हमारा दूल्हा है उसे देखने के लिए? Love is getting increase and increase and increase and increase. जो प्रेम है वो बढ़ता चला जाता है। That is our calling. वही हमारी बुलाहट है। We have done so many things. हमने बहुत सारी कामों को किया है। God has given everything for me. परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। Meditate on this love. इस प्रेम पर आप मनन करें। Let God help you. परमेश्वर आपकी सहायता करें। Amen.